Atisha, Atisha, keep your mic. Yeah. Arush, switch mute कर लो बेटा आरुष, है ना? Atisha, you can join me in Omkaram. All of you join your hands, close your eyes for Omkaram. Sai Ram, once again I welcome you all. Okay, beta. So here I'm going to print my screen. Atisha, you can tell me, Yes, sir. beta. Yes, sir. Atisha, Arush, you mute कर लो बेटा. Sir, Arush, mute मैं yourself. आरुष कर लो बेटा. screen is अतिशय को बोलने visible. दो. Sir, Yes, your yes. screen is visible. Very good, beta. Yes, sir. Now, Screen is visible. what can you say? See? Okay. Adaptation. And beta. So, in the last period, we talked about habitat. And Atisha, how can we define a habitat? Atisha, define habitat. Atisha, Yes, sir. what do you mean by habitat? सबकी screen नहीं दिख रहा है. Sir, screen is visible. नहीं दिख रही Sir, है? screen is visible, very clear. Visible. Okay. Okay. Sir, Okay. screen is visible. Devansh Sir, is there? screen is Devansh? sir, Okay, screen beta. sir, screen is visible. Sir, screen is Okay, beta. Sairam, sir. Okay, beta. Sairam, sir. Okay, beta. Sairam, beta. हाँ देवांश, define habitat. Sir, Define habitat. Sir, may I? हाँ, बोलो बेटा. सर जहाँ पे जानवर रहते हैं उनका घर जहाँ पे हाँ, होता है. जानवर मतलब हम लोग उसी में आते हैं, है ना? लिविंग सर Natural home of animals. एक बोलने दो ना, मैंने किसी का नाम लिया. Tell सर me, जो उनका घर होता है take वो the name of someone. Sir, the I place want where organisms live is called a habitat. Sairam, all of you will not open your mic. Remember it. I have asked from someone, and it is a type of assessment also. So all of you do not speak at the same time. When I ask you, you reply me. Let Devansh speak. Devansh, unmute करो बेटा. सर जहाँ पे वो जो एनिमल्स नॉर्मली जहाँ पे रहते हैं वो उसे बेटा, हैबिटेट कहते हैं. can we in the last class I explained all these things. So you should be able to speak in one sentence in English, not in Hindi. I'm not asking you to explain habitat. I'm asking you to define habitat. सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. हाँ. यस सर, आपकी आवाज एकदम ब्रेक हो रही है It is not clear. Sir, कहीं से नहीं दिख रहा. देवांशी माइक म्यूट कर ले. देवांशी माइक म्यूट कर ले. बाकी सभी लोग, all of you mute yourself. All of you mute yourself. Only Devansh Trivedi, Devansh Trivedi. Sir, the place where the animals live. The place where living organisms live is called its habitat. है ना बेटा? Now tell me Devansh, is my voice breaking? Yes sir, No, sir. sometimes your voice is breaking very much. Breaking. Let me join again, okay? Voice Okay, clear. Correct thing.
right? Arush, Yes, sir. Arush Jain, is my voice clear, Yes, beta? sir. यस सर अब Okay. थोड़ी क्लियर आ रही है। हाँ, okay, Sir, beta. voice Thank- clear आ रही है। Sir, voice is clear. Okay, so okay, my dear. See the PPT. In the last period, we discussed about that the place where a plant or an animal lives is called its habitat. We may call it our dwelling place. Dwelling means live. Dwell means live होता है बेटा, है ना? Dwell means live बोलते हैं. The place where an animal or a plant lives is called its habitat. Okay, a land-based habitat is called a terrestrial habitat. Atishay, are you here? Atishay Jain. Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, what do you mean by a terrestrial habitat? Terrestrial habitat. सर अ लैंड बेस्ड सामने हैबिटेट इज कॉल्ड हाँ अ टेरेस्ट्रियल Land based habitat is called terrestrial. Habitat is let called let अतिशय स्पीक. अतिशय को बोलने दो ना बेटा, है ना? अतिशय, A land-based habitat is called terrestrial habitat. good. And what is an aquatic habitat? अ वाटर A बेस्ड हैबिटेट water-based habitat is called an A water-based habitat. A water-based habitat is called We can also define when a plant or an animal lives in water, it is called aquatic. When a plant or animal lives on the land, it is called on terrestrial habitat. So terrestrial means on the land. Aquatic means in water. Okay. We learned that a habitat has two components. What are the two components of a habitat? Tariq, Sir, may I? what are the two Sir, may I? components of a habitat? बेटा terrestrial तौरिक का habitat नाम है and लिया ना? aquatic habitat. एक बात पहले क्लियर कर लो बेटा. When I am calling someone, let that student speak. Okay? हाँ गौरिक. Terrestrial What are the habitat two and components? aquatic habitat. सॉरी, आप इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो घर में? सर सामर्थ्य का माइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ मैं बाहर कर दूंगा, उसको रिमूव कर दूंगा मैं यहीं से. दूसरा कोई माइक ओपन नहीं रखेगा. मैं नाम लेता हूँ, वो अनम्यूट करेगा, बात करेगा मुझसे. ऑल अदर्स विल कीप योरसेल्फ म्यूटेड. बेटा एक बात समझो, it is my permanent homework, whatever the chapters we have studied, whatever we have already covered, it should be memorized. आपको ये सब याद होना चाहिए. याद क्या करना है? अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, then you will surely you will answer the questions. है ना? आप जरूर जवाब दोगे बेटा, है ना? So try that बेटा. इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं करते हो. आई एम नॉट हैप्पी टुडे. सर मैं पिछली बार पढ़ाया. हाँ आरुष बेटा आप अच्छा पढ़ते हो, आई बिलीव दैट. इसका मतलब सही बच्चे सबको पढ़ना पड़ेगा ना, क्यों आरुष? Sir, may I? सबको पढ़ना पड़ेगा. Sir, water and land. एक मिनट बेटा, एक या दो बच्चों के जवाब देने से हो जाएगा? या तो खुद नहीं सवाल पूछते. एक तो आपको खुद पूछना चाहिए, समझना चाहिए, याद करना चाहिए, तैयार होना चाहिए. आधा दूर आंसर देते हो. आई एम नॉट हैप्पी टुडे, है ना? नेक्स्ट टाइम दिस शुड नॉट हैपन. द टू कंपोनेंट्स, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट? बोलो बेटा, कौन कौन समझता है? Sir, may I ask? Land and water. आरुष के अलावा? Biotic and abiotic. हाँ, बायोटिक एंड एबायोटिक हैबिटेट कंपोनेंट. सर व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक? हाँ देखो बेटा, बता रहा हूँ मैं. There are two components of a habitat. You can see in the
पीपीटी देखो, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब द लिविंग कंपोनेंट, लिविंग पार्ट ऑफ द हैबिटेट। अब देखो बेटा, जैसे कोई हैबिटेट ले लो आप, मान लो आप ले लो डेजर्ट, तो डेजर्ट में क्या रहेंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे वहां पर। प्लांट में भी क्या, कैक्टस होगा, एक ऐसिया बबूल होगा, है ना, आपका एनिमल में कैमल दे सकते हैं, कई सारे डेजर्ट रैट होंगे, डेजर्ट स्नेक होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। So these are called biotic component. Biotic means living component, living things जो रहेंगे उसमें। अच्छा, इसके अलावा वहां पर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे, सॉइल होगी, रॉक होगा, स्टोन होगा, वहां कुछ टेम्परेचर मेंटेन होगा, थोड़ी रेनफॉल होगी, वाटर होगा। तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। यू कैन सी द फ्लो चार्ट, देखो बेटा, है ना अतिशय। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या देखो है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज अतिशय मैंने आपको मॉनिटर बनाया है, तो आपको बीच में मेरा जवाब देते रहना पड़ेगा, ठीक है? कर पाओगे बेटा अतिशय? Yes, sir. जोर से बोलो थोड़ा। Yes, ए sir. बायोटिक कंपोनेंट, हाँ बेटा, एंड कैन यू रीड ए बायोटिक कंपोनेंट्स? Light, Light, temperature, water, soil, water, air. soil and air. Now you can Air. define, लिख लो, ये सब लिख लो बेटा। Biotic components, the living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components. देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। And abiotic components, the non-living things such as rocks, soil, air, sunlight, heat and water in the habitat are its abiotic components. Okay, so ये कभी भूलना नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। एंड एक बात और बात की थी मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? भव्य काबरा, डिफाइन अडेप्टेशन। भव्य, नॉट हियर। अखिल, अखिल शर्मा, what do you mean by adaptation? अनुष्का, can you बेटा? Yes, सर मैं बताऊं देवांश? देवांश, अच्छा देवांश बोलो। हाँ देवांश बोलो, देवांश। सर देवांश, हाँ सर जहाँ पे हम लोग रहते हैं या फिर जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, जब हम उस चीज को अडेप्ट या फिर सीख लेते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। हाँ, certain our habits and our body features which help us to survive in a habitat is called adaptation. May I give the answer? हाँ गौरव, गौरव, Adaptation is a physical or behavioral characteristic of an organism that help an organism to survive better in the surrounding environment. yeah, now see the PPT. सब पढ़ाया, सब भूल गए आप लोग। आई एम टुडे नॉट एट ऑल हैप्पी, नेक्स्ट टाइम दिस शुड नॉट हैपन। सभी लोग जितना मैंने पीछे पढ़ाया है सब याद होना चाहिए, फटाफट जवाब दो। इसका नाम मैं लेता हूँ। ये देखिए अडेप्टेशन, कैन यू सी? अतिशय रीड बेटा। Yes, sir. हाँ The रीड इट, of अडेप्टेशन। हाँ features, दिख रहा है? हाँ जोर से बोलो बेटा, थोड़ा बहुत आवाज बहुत कम आ रही है। the presence of specific features or certain habitats which enable हैबिट्स, नॉट हैबिटेट। अतिशय सर्टेन हैबिट्स बेटा, अपनी कुछ हैबिट होती है ना, कुछ हैबिट होती है, तेज भागना, धीरे भागना, है ना? हैबिट्स, certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation. ये सब याद कर लेना है नेक्स्ट टाइम। ओके, सो नाउ टुडे विल गो a journey through different habitats. आज हम different habitats, particularly desert की बात करेंगे। some terrestrial habitats में desert,
Now, deserts, you all know, desert is a place where mostly it is sandy. There are sands, there are few trees, mostly what are there? Cactus and acacia, बबूल, कांटे वाले पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर, है ना? And animals like camel, some desert snakes, rats, ऐसे एनिमल्स होते हैं वहां पर हैं. Scorpions. हाँ बेटा. So deserts, how are animals and plants, particularly one example we'll take, है ना बेटा? And we'll try to know what are the adaptive features, how are they adapted. Remember beta, if an organism is not adapted in its surrounding, it will have to die. इसको मरना पड़ेगा. अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना बेटा. अभी अचानक बहुत ठंड पड़ने लगे, -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, तो क्या हम सब जिंदा रहेंगे? नो सर. नो सर. नहीं ना बेटा, है ना? एकदम से मर जाएंगे हम लोग. और वही -37 डिग्री सेल्सियस में कौन? पोलर बेयर देखो मस्त रहता है. कहाँ? पोल्स पे. सर अगर हमने गर्म कपड़े बहुत ज्यादा पहन लिए तो जिंदा रह सकते हैं क्या? -37 डिग्री सेल्सियस में नहीं रह पाओगे, कितना भी गर्म कपड़े पहन लो यहाँ पर. सर फिर पोलर बियर आपको कैसे रह जाता है? बाकी सारे एनिमल्स तो मर जाएंगे. लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पोलर बियर के बारे में. उनको नेचर ने स्किन के नीचे एक मोटा लेयर फैट का दिया है, तो रबर बोलते हैं. एक लेयर होता है, it acts as insulator. It doesn't allow its body heat to go into surrounding. समझ रहे हो? A polar bear has very thick fur. बहुत मोटा फर होता है उनके बॉडी पर, रोया होता है. आपने देखा होगा पोलर बेयर का फिगर देखा होगा, फोटो देखा होगा. उनके शरीर पे व्हाइट कलर के, है ना, ग्रेस व्हाइट कलर के बाल, लंबे लंबे बाल होते हैं. ये बाल पता है क्यों नेचर ने दिया है? इन हेयर्स में एयर ट्रैप हो जाती है बेटा, हवा घुस जाती है उनके बीच में. एंड एयर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. It doesn't allow the body heat of polar bear to go into the surrounding, है ना? अब देखिए, आपको ऊन किससे मिलता है बताओ? How do we get wool? wool. अतिशय sheep sir. शीप, है ना? अब शीप के बाल कितने लंबे लंबे होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर. वुल कहते हैं बेटा. शीप की बॉडी के जो बाल होते हैं उनको ही काट के लिए बनाते हैं ना हम लोग वुल. यस सर. क्योंकि अब यस सर. उनको ये सारे बाल क्यों दिए शीप को? शीप को नेचर ने लंबे लंबे बाल क्यों दिए हैं? जनरली शीप कहाँ मिलते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा, साइंस पढ़ते हैं ना, सिर्फ रटना नहीं है, हमें सोचना है आसपास पूरे. शीप जनरली कहाँ पाए जाते हैं बताओ? माउंटेन रीजन में, पहाड़ियों पर मिलते हैं ज्यादा बेटा, जहाँ ठंड बहुत होती है. तो ठंड से बचने के लिए नेचर ने उसको दिया है, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो जाता है बेटा, और एयर जो है वो बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता है. अच्छा, आपको ठंड लगती है, बहुत ठंड लग रही है आपको, दांत, आप रजाई ओढ़ते हो ना? हाँ, फिर बात करने बेटा. ये देखो, साइंस पढ़ने का मतलब वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना? लेकिन वैशाली तो इतना, कौन है वैशाली, कौन लिख रहा है ये? अभी सब ट्राई लगाता हूँ. आरुष. यस सर. हाँ बेटा, ये क्यों, मैंने क्या लिखा था चैट बॉक्स में? सर ये भी लिख रही है सर. मुझे तो तुम भी लिखोगे? सर वो लिख रही है सर. वो भी लिख रही है. अच्छा, वो कुएं में गिरेगी तो भी कुएं में गिरेगा? बार बार बोलना. वही तो करते आए ना. तो तुम लोग अच्छा, ठीक करता हूँ मैं अच्छे से पहले. यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड विद लव एंड अफेक्शन, यू आर लव टू बी चाइडेड, स्कोल्डेड. ये चाहिए तुम लोगों को, हैं? बोलो जल्दी. आरुष, डू यू लव टू बी चाइडेड, स्कोल्डेड? One line I'm telling you, stop all these things. In the chat box, nobody is going to write anything. You can ask me questions.
You can only address me, not to anybody else. Mind it. This is my last warning. तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा अभी मीटिंग से बाहर, और जब भी ज्वाइन करोगे मैं तुम्हें हटा दिया करूंगा यहाँ से, लास्ट नहीं कर पाओगे फिर। Try to maintain the decorum, beta. We should follow self-discipline. Here in our Satsang Vidya Vihar, we practice self-discipline. हम डंडा लेकर डिसिप्लिन नहीं करते, ठीक। हम चाहते हैं आप खुद सीखिए, learn it, how to behave in a well way, right? Stop all these things. Now tell me, beta. Okay, sir. Yes, sir. Devans, Devanshi there? मुझे भी चांस दीजिए। वो सब नया बनते जा रहा है क्या? इतने महीने पढ़ लिए हम लोगों ने, कितने से पढ़ा? देवांश, यस बेटा, अच्छा। हाँ देवांश, बोलो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। तो बेटा देवांश, अगर हमें बहुत ठंड लग रही हो, तेज ठंड लग रही हो, तो मम्मा क्या करती है? रजाई डाल देती है बॉडी के ऊपर, है ना? बोलती बेटा लेट जाओ, रजाई ओढ़ लो। रजाई ओढ़ते तुरंत ठंड खत्म हो जाती है क्या आरुष? नो सर। नो, थोड़ी समय लगता है, थोड़ी देर लगती है। एक्चुअली रजाई में क्या, रजाई के अंदर तो फायर तो है नहीं बेटा, कि फायर है और हमें तुरंत गर्मी मिलेगी, ऐसा है क्या रजाई में? नो सर। रजाई में तो गर्मी तो है नहीं, तो फिर रजाई हमें कैसे ठंड से बचा लेती है आरुष? सर क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो थिक होती है, और जो उसमें जो कॉटन या फिर वूल यूज होता है वो हमें गर्मी देता है, हाँ। जैसे कि शीप को देता है। अच्छा चलो, अच्छा वुल से गर्मी मिलेगी हमें। मैं यहाँ बैठा हूँ और थोड़ी देर पे वुल का ढेर रख दूं, बहुत ठंड लग रही है मुझे, वुल वहां पर दूर में रखा हुआ वुल है, थोड़ी दूर पर, जैसे आग जलाते हैं ना बेटा कहीं पे, वहां पर आग नहीं जला के मैंने वुल रख दिया बहुत सारा, और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो क्या मेरी ठंड दूर हो जाएगी? नो सर। तो भाई अगर वुल गर्मी देता है तो फिर वहां से हमें गर्मी मिलनी चाहिए ना। वुल में कोई हीट का सोर्स नहीं बेटा, वुल इज नॉट अ सोर्स ऑफ हीट। हाँ, वुल इज फाइबरस। वुल में जो पोर्स होते हैं उसमें हवा भर जाती है, ठीक है आरुष? और जब हम उसको अपने बॉडी पे लपेटते हैं वुल को, चाहे शॉल हो या रजाई के फॉर्म में, तो क्या करता है, जो एयर है उसके फाइबर में जो फंसे एयर हैं, दे एक्ट एज इंसुलेटर, और वो हमारी बॉडी को हीट को सराउंडिंग में नहीं जाने देते। हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि उस समय सराउंडिंग टेम्परेचर लो होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, तो हमारी बॉडी से हीट सराउंडिंग में जाती है और हमें ठंड लगती है। अगर किसी तरह से हमारी बॉडी की हीट सराउंडिंग में नहीं जाए तो हमें ठंड नहीं लगेगी, धीरे धीरे हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरह से जो वुलन क्लॉथ्स हैं पहनने के बाद में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है आरुष? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। हमारे कोई बॉडी पार्ट है उसमें झुनझुनी कैसे आ जाती है? झुनझुनी का कारण है एक, या तो वो बॉडी पार्ट प्रेस रहा, दबा हुआ रहा, और उस बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रॉपर नहीं हो रहा है, इस तरह से फिर वो झुनझुनी होने लगती है बेटा, सेंसेशन होने लगता है ना? और फिर उसको मसाज कीजिए थोड़ा धीरे धीरे, जैसे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा यू विल फील कंफर्टेबल, ठीक है? यस सर। हाँ बेटा। सो सुनो बेटा, तो जो शीप वगैरह है उसको नेचर ने लॉन्ग लॉन्ग हेयर दिए हैं, क्योंकि हेयर में एयर ट्रैप हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी हीट सराउंडिंग में नहीं जा पाती। ऐसे ही पोलर बेयर को होता है, ठीक है? सो अभी हम चलते हैं बेटा, आइए डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट्स में यू विल फाइंड, ओके, इन डेजर्ट्स वी कैन सी कैमल। सो हाउ आर कैमल अडेप्टिव, है ना? What are the adaptations of camel that help it to live in the desert? कैमल की बॉडी में क्या चेंजेज होते हैं, उसके हैबिट्स में क्या चेंज आते हैं, so that it is able to survive in the desert in a very nice way. आराम से डेढ़ में रह लेता है ना? So let us discuss one by one. देखिए, first one, camels have long legs
which help to keep their bodies away from the heat of the sun. अब देखिए, जो दिन में डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बेटा, आरुष, यस है ना, सर। है ना बेटा, तो सैंड बहुत गर्म हो जाता है और वहां से उसमें सैंड से अगर बॉडी की हीट मिलती रहेगी तो बहुत डिफिकल्ट करना है। तो लंबे लंबे पाँव होते हैं, है ना बेटा, कैमल के पाँव बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो हीट है सैंड की वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है बेटा, तो एक इशारा मैंने तुम्हारे बुक से लिया, पहले बुक देख लो आप लोग सभी लोग। अब सर ने कुछ पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, है ना, आप बुक खोलो बेटा अपना, पहले बुक देख लो आप लोग, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक। ठीक है, ओके, यू कैन सी पेज नंबर 81, फिगर नंबर 9.2, कैमल्स इन देयर सराउंडिंग। और सराउंडिंग क्या है देख सकते हो, कैमल इज इन द डेजर्ट। एक कैमल क्या खा रहा है, थॉर्नी, है ना, बबूल के पेड़ से कांटे वाले पत्ते खा रहा है, देख रहे हो आप, दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, एनी वन ऑफ यू कैन टॉक टू मी बेटा, एक को मुझसे बात करो, यस सर। है ना। हाँ बेटा, देखो दिख रहा है ना, तो डेजर्ट में रहते हुए कैमल हाउ इट कैन सर्वाइव in the desert, what are the adaptive features, मैंने पढ़ा बताया ना adaptation, certain features or habits which make us to live in our surrounding is called adaptation. So what are the adaptations of the camel, है ना, अब ध्यान से देखिए, adaptations in the camel, देखिए camel, मैंने सारे पॉइंट्स आपके बुक से लिए, अभी जो मैं पॉइंट दिखा रहा था, एक मिनट बेटा, कैमल का कैमल, एक मिनट बेटा, हाँ यस कैमल, एक मिनट बेटा, अब दिख रहा है कैमल के बारे में, एडेप्टिव फीचर ऑफ कैमल, हाँ यस, देखिए, है ना, यहाँ से पेज नंबर निकालो बेटा 80, मैं तुम्हें पेज में भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, बाद में भी याद कर सकते हो। पेज नंबर 80 निकालो सभी लोग, आरुष। यस सर। पेज नंबर 18 ला, बुक खोलो। यस सर, मिल गया। 80 देखो, यहाँ देखिए, अ कैमल, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल, यहाँ से लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल helps it to survive in desert conditions. So what are the structure of the body that help a camel to survive in the desert? देखो, camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun. अंडरलाइन कर लो बेटा सभी लोग, करेक्ट सर, करेक्ट मिश्रा, यस सर। दिखा, पेज नंबर 18 निकालो, यस सर। पेज नंबर 18 का लास्ट पैराग्राफ देखो, सबसे लास्ट में देखो, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। नंबर 1, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स व्हिच हेल्प टू, अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ, कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। उनके पांव बहुत लंबे लंबे होते हैं बेटा, इससे जो गर्म सैंड है इससे उसका बॉडी दूर रहता है थोड़ा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे एक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम यूरिन पास करते हैं, और अगर पास भी करते हैं तो बहुत थोड़ा सा, और वो बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही, है ना, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है बेटा, क्योंकि डेजर्ट में पानी कमी होती है ना, करेक्ट सर। डेजर्ट, हाँ बेटा बोलो, सर, डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। शायद डेजर्ट में बहुत कम पानी को होता है। बचाना है, बॉडी में पानी को रोक के रखना है, बचाना है, पानी ज्यादा बॉडी से बाहर ना निकले, इसलिए वो क्या करता है, बहुत ही कम यूरिन पास करता है। They excrete means taking out from the body. They excrete small amount of urine
दूसरा जो डंग होता है, सर हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट मैं आ रहा हूँ, बात करता हूँ। जो डंग होता है कैमल का बहुत ड्राई होता है, बिल्कुल सूखा डंग होता है, बहुत कम पानी होता है, तो उसमें भी पानी कम निकला बॉडी से, एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना तो आता ही नहीं है। तो इस तरह से अपने बॉडी का जो वाटर का है रिटेंशन उसका बढ़ जाता है, इट लूजेज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हाँ अब बोलो। सर आपने कहा कि उसके डंग और उसके यूरिन में जब वाटर की कम मात्रा होती है सर, फिर वो आसानी से निकल कैसे आते हैं? हाँ ड्राई डंग डंग निकलता है, ड्राई डंग निकलता है बेटा, उनका ड्राई होता है, उनकी बॉडी से इतना तो थोड़ा सा होता है, बिल्कुल ही एकदम से ड्राई नहीं होता, बट हम लोगों का जो स्टूल होता है उससे कंपैरिजन में अदर एनिमल्स का, काऊ ले लो, गोट ले लो, इसके कंपैरिजन में है ना ड्राई होता है बेटा, ठीक है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। बिना पानी के भी कई लंबे मतलब 1 वीक तक रह जाते हैं बिना पानी पिए। हमारा रह पाओगे? नो सर, अपन नहीं रह सकते। यस हाँ। सर नहीं। है ना बेटा? तो और भी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ फीचर्स दिया हुआ है बुक में आपके हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए आप, है ना। जैसे हमने देखा अभी, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आएगा, राइट डाउन द अडेप्टिव फीचर्स ऑफ कैमल विच हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। मैं क्वेश्चन ही बताते जाता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सारे बुक के अंदर से पूछे जाते हैं, और क्या होता है मैं सब बताता जाता हूँ, तो ध्यान से सुनो, लिखते जाओ कॉपी पेंसिल से। Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun। और अगला क्लास होगा तो पूछूंगा नाम लेकर के, टेल मी 3 फीचर्स ऑफ कैमल, राइट, अडेप्टिव फीचर्स ऑफ कैमल। दिखा ना मेरा, अडेप्टिव फीचर्स ऑफ कैमल। अडेप्टिव फीचर मीन्स the body certain changes in the body shape or habits which allow a living organism to live successfully in its habitat are called adaptation। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैंने बताया, they excrete small amount of urine, their dung is dry, they do not sweat, a camel can go a week or more without water and they can last for several months without food। कई महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं वो, और इस ऐसे इसलिए करते हैं बिकॉज कैमल स्टोर फैट इन द हम्प। उनके हम्प होती है, देखा होगा आपने, कैमल को कुबड़ होती है ना, देखा है ना आपने, कैमल देखा, कितने लोगों ने देखा है? यस सर, वहाँ पे बैठते हैं। हाँ यस सर मैं कैमल को देख चुका हूँ। मैं भी बैठा हूँ। और 2 तरह के डेजर्ट होते बेटा, डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट, आपका सैंड वाला डेजर्ट, एक कोल्ड लद्दाख वहाँ क्या सर आपकी वॉइस सही से नहीं आ होता है। सर योर वॉइस इज वेरी वेरी ग्रेट। ओके सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वॉइस यस सर, रियली वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ बेटा, इसी में तुम लोग माहिर हो, वॉइस इज नॉट क्लियर सर, एक सेंटेंस पकड़ लिया, ये बोलते रहना बार बार, और जो काम की बात है ना वहाँ मुंह बंद कर लेना। So some camels have double hump, 2 hump होते हैं, देखा है 2 hump वाले कैमल? यस सर, सर ये नहीं देखा। 2 हम्प होते हैं, जो विदेशी होते हैं उनका एक ही हम्प होता है। थोड़ा पता करना कि 2 hump वाले कैमल कहाँ पाए जाते हैं सर इंडिया में। 1 hump वाला कैमल सर मंगोलिया। सर मंगोलिया। है ना, पता करना नहीं, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन पता करना, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। जैसे डेजर्ट, लाइक जो राजस्थान डेजर्ट है, यहाँ पर हॉट डेजर्ट है ये, और रात में ठंड पड़ती है मगर दिन बहुत गर्मी होती है, और ऐसे डेजर्ट जहाँ ठंड ज्यादा रहती है, दिन में भी ठंड रहती है। तो पता करना कि 2 हम्प वाले कैमल कौन से डेजर्ट में रहते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, ध्यान से पता करना, ठीक है। अब सर हॉट डेजर्ट, हाँ बेटा ध्यान से, नहीं, कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं 2 हम्प वाले, और हॉट डेजर्ट में सिंगल हम्प वाले। ये देखें, ध्यान से देखो बेटा, ये जो हम्प होते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे इसमें पानी जमा रखता है, वो नो सर बिल्कुल नहीं होता, वहां पर क्या होता है, फैट होता है। फैट पता है ना बेटा, चैप्टर नंबर 2 याद करो। यस सर पता है। एनर्जी याद जब हमारे
में स्टार्च की कमी होती है तो जो हमारा फैट है वो डिजॉल्व होकर हमें एनर्जी देता है। In fact, more energy is given by the fat, same amount of carbohydrate and fat, which will give you more energy. फैट। Fat, because it is concentrated. फैट। तो जो कैमल है बेटा, कि कई महीनों तक भूखा रह जाता है, उस समय उसका हम्प का साइज छोटा होता चला जाता है, क्योंकि उसमें जो फैट है वो डिजॉल्व होकर उसको एनर्जी देता रहता है। और जैसे उसको, जैसे जानते हो डेजर्ट में होते हैं ओएसिस, हैव यू हर्ड द नेम ओएसिस? पता करना व्हाट इज ओएसिस, लिख लो, स्पेलिंग लिखूं क्या? सर लिख दीजिए। हाँ लिख रहा हूँ बेटा, नोट डाउन। ओएसिस, OASIS, ओएसिस। ये सर मुझे थोड़ा सा पता है उसके बारे हाँ में। थोड़ा सा पता करना, अगली बार बताना मुझे, नेक्स्ट क्लास में बताना ओएसिस। ओके नेक्स्ट बेटा, ये एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं मैं, यहां तक का आपको बुक में है पॉइंट्स। Camels store fat in the hump. Camels' feet are wide so they can walk easily on the sand. उनके पैर, पांव जो होते हैं बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं, so they can easily run on the sand. हम और आप सैंड पे रन नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पांव सैंड में घुस जाते हैं और फिर हमको निकालने में टाइम लगता है। इस तरह से हम तेज नहीं भाग सकते सैंड में। कितने लोगों ने सैंड में भागने की कोशिश की है आप में से? आपने कुछ फील किया, डिफरेंस आता है? Yes. जैसे आप सड़क पे भाग सकते हो, लैंड पे भाग सकते हो, क्या आप ऐसे ही सैंड में भाग पाओगे? नो सर, सर ऐसे सैंड नो में नहीं सर, भाग सर पाएंगे। नो सर नहीं भाग पाएंगे। नहीं भाग पाते हैं, लेकिन जो कैमल होता है बेटा, उनको आपने पढ़ा होगा कहीं पर, कैमल्स आर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। शेप ऑफ द डेजर्ट। हाँ सर शेप ऑफ द डेजर्ट, शेप ऑफ द डेजर्ट। इजीली रन ऑन द सैंड, सैंड पे भाग लेते हैं क्योंकि उनके पैर बहुत ही चौड़े होते हैं और उसकी वजह से उनके पांव सैंड के अंदर नहीं जा पाते हैं और वो आराम से दौड़ लेते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, दे हैव थिक लिप्स, उनके जो लिप होते हैं ना बेटा वो बहुत मोटे होते हैं। एंड दे कैन इजीली ईट द प्रिकली डेजर्ट, प्रिकली मतलब कांटे वाले, थॉर्नी बुशेज, वो आराम से थॉर्नी बुशेज को भी बिना पेन के खा लेते हैं। सर उनकी जीभ भी बहुत थिक होती है। हाँ इसीलिए कांटे चुभते नहीं उनको है और आराम से वो कांटे, अच्छा उनके मुंह में जो है ना थोड़ी हीट होती है, उससे कांटे जो है मुड़ जाते हैं और आसानी से उनको खा लेते हैं वो। अच्छा, उनके नॉस्ट्रिल्स में फ्लैप होते हैं, अपने नाक में फ्लैप नहीं है। अगर फ्लैप होता तो अपने आप नाक कभी बंद कर पाते हैं, हमको बंद करने के दबाना पड़े तब बंद होता है। उनके नाक में फ्लैप होते हैं, फ्लैप से बंद कर लेते हैं। जैसे फ्लैप हम लोग देखो आई में है ना, देखो आंखें बंद कर लेते हैं इससे, ये आईलिड से। उनके नोज में भी होते हैं बेटा, उनके आई सर वो अपनी नाक को क्यों बंद करेंगे? नाक क्यों बंद करते हैं? क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, अचानक से सैंड की स्टॉर्म आती है, तेज आंधी आती है और सैंड उड़ता है और वो सैंड टकराता है बॉडी में। अगर उनके नाक में घुस जाएगा तो वो मर जाएंगे बेटा, सांस नहीं ले पाएंगे। तो नोज को फ्लैप से बंद कर लेते हैं जब तक आंधी आती है तब तक, और फिर आराम से खोल लेते हैं। समझ रहे हो? ओके सर। और जो उसका मालिक होता है जो कैमल का, जो आंधी आती है ना सैंड में, पीछे छुप तो क्या जाता करता है है। वो, उसको बिठा देता है और उसके पीछे खुद बैठ जाता है। सर अगर हम उस आंधी का सामना करेंगे तो हमारी स्किन की कुछ परतें निकल जाएंगी। बिल्कुल बेटा, बहुत डिफिकल्ट है सैंड डेजर्ट में रहना, सरवाइव करना, है ना। उनकी आई लैशेज भी लंबी लंबी होती हैं, उनसे भी वो छिपा लेता है, धूप से बचती भी है और सैंड से बचाता भी है बेटा। तो कैमल के बहुत सारे और भी मैंने बताया, इसमें आपको 3-4 याद रखना है। ये 1 2 3 4 ये 4 एड फीचर्स आपको एग्जाम में जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है? कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड व्हाई डू दे हैव लॉन्ग, हाउ डू लॉन्ग लेग्स हेल्प अ कैमल? बोलो बेटा। सर दे हेल्प, हाँ sir, leg help camel to protect them from the heat of the very hot sand. वेरी गुड, है ना। टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड and they secrete small amount of urine, their dung is dry, they do not sweat. In this way they can survive without water for longer period, है ना बेटा। Similarly there are desert animals
like rats and snakes which do not have the long legs that the camels have. देखिए कैमल को तो लंबा पाँव बच जाता है, बहुत सारे रैट है, स्नेक्स हैं, स्नेक के तो पाँव ही नहीं होते, रैट के छोटे छोटे पाँव होते हैं, तो वो कैसे बचता है गर्मी से, हॉट सैंड से? सर तो वो क्या स्नेक करते वो हैं? सैंड में घुस जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे वो टेन में होल में बनाकर कुछ इस लाइन को याद रखो बेटा, है ना? इस लाइन को याद रखिए, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस मींस वेरी हाई हीट ड्यूरिंग द डे, डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स स्टे इन burrows डीप इन द सैंड। सैंड के बहुत नीचे बरो बनाते हैं और उसके अंदर छुप के रहते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler. सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। अच्छा, आप सर वो रात में ही शिकार करते हैं। हाँ बेटा, there are two type of animals, है ना? Some animals are active during the day, जैसे हम लोग हैं, कैमल हो गया। What do we call such animals? And there are animals which are only active during night. What do we call such animals? nocturnals. हाँ, and in the daytime? सर नहीं मालूम। सर octurnal. हाँ ये नहीं, इसको पढ़ो, मैंने लिखा है DIURNAL। सर ड्यूरनल, diurnal and nocturnal, है ना? जो एनिमल रात को एक्टिव होते हैं they are called nocturnal, TURNAL, and those who are active during the day are called diurnal animal। तो समझ सकते हैं आप, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है? टेन मैटर, तो वो लोग तो पूछा जाएगा, है ना? वाई डू डेजर्ट रैट्स एंड स्नेक्स लिव डीप इनसाइड द burrows इन द डे टाइम? क्या आंसर लिखोगे? कोई बताओ। बोलो बेटा। चलो, विल डिस्कस रेस्ट ऑफ इट, है ना, नेक्स्ट टाइम। टुमारो विल डिस्कस, नेक्स्ट पीरियड विल डिस्कस ऑल अबाउट। सो मेरा ये कहना है बेटा, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेमोराइज all these things whatever we have discussed, right? So एक बेटा जस्ट जल्दी लिख लो किसी का नाम, कौन लिख सकता है? आरुष? हाँ टाइम ओवर हो गया बेटा, आई एम रेडी। Yes, sir. आरुष, जितने बच्चे हैं ना उनके नाम लिख लो, तो डोंट लीव एनीबॉडी बेटा। तो लीव कर दिया क्या? इनके नाम लिखो, कागज पे लिख लो और मुझे क्लिक करके भेज देना व्हाट्सएप पे। कर सकते हो बेटा? मैं नाम बोलता हूँ, लिखते जाओ, शॉर्ट में लिखते जाना। अखिल शर्मा, अखिल लिखो, अनुष्का, आरुष खुद लिखो, अतिशय, भाव्या, देवांश, गौरिक, हिमांशु, प्रत्युष्म, रिदम, सलोनी, सामर्थ्य, संस्कृति, सूर्यांश, इतने लोग हैं। ओके, चैंट शांति पाठ। शांति शांति। सर थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सर थैंक यू सर, बाय सर। You all are good students. सर थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय तो है बेटा, सभी लोग बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना? जिसका भी नाम ले दो फटाफट आंसर दिया करो। ओके ओके बेटा, लीव इट।